شکر گزار ہوں اپنے خداوند کے جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یسوع سنگ سویرا آپ کے ساتھ پروگرام لے کر آئیں اور آپ کے ساتھ مل کر زندہ پاک کلام کو سیکھ سکیں اور اس خداوند کی حمد و ستائش کر سکیں اور اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ آئیں میرے ساتھ ایک زبور دیکھیں، زبور 100۔ آئے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین۔ عزیزو، آپ سب کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آئیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں ایک بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بہت ہی خوبصورت گیت تھا۔ اس گیت کے وسیلہ سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے برکت پائی ہوگی اور خداوند اپنے پرستار کو بھی بہت برکت دے۔ عزیزو، آج ہمارے ساتھ پاسٹر منور ہیں جن کے وسیلہ سے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیں گے۔ تو پاسٹر جی، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام میں، یسوع سنگ سویرا میں۔ تھینک یو جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ آج جو حوالہ ہے ایک مکاشفہ میں سے بھی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر غور کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف چلیں، ہم دعا کریں گے آپ کے ساتھ مل کر۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں۔ اے خداوند رب الفاظ، آسمانوں پر رہنے والے، تو ہی ابتدا اور تو ہی انتہا ہے، ہم تیرے ہی حضور میں جھک کر تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک ہی نام ہمیں بخشا گیا ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے، اور وہ یسوع نام ہے۔ ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اے خداوند، دنیا کے بہت سارے خدا ہیں لیکن ہم صرف تجھے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو سجدے کے لائق ہے۔ تو نے اپنا قیمتی خون دے کر ہمیں خریدا ہے، تو نے محفوظ کیا ہے، تیرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تیرا شکر ہو۔ اس ساری ٹیم کے لیے بھی تیرے حضور میں شکر کرتے ہیں جو خداوند اس وقت تیری اس بادشاہی کی تیاری کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ خداوند اس ٹیم کو بھی برکت دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، ہم سب کو برکت دے، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔ چند آیات ہیں جو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر میں چاہوں گی کہ آپ وضاحت کریں۔ جی جی ضرور۔ تو عزیزو، نکالیں میرے ساتھ مکاشفہ اس کا 21 باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے اور 5ویں آیت۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھو میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ آمین۔ جی پاسٹر جی، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ جی، جو پہلی آیت آپ نے پڑھی ہے، نیا آسمان ہوگا اور یہ نئی زمین ہوگی، جی، اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے اس پر شاعری بھی کی ہے، اور نئے آسمان کے تعلق سے اور نئی زمین کے تعلق سے، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جاتا رہا اور پہلی زمین جاتی رہی۔ خداوند نے نئی زمین اور نیا آسمان بنایا، اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں ہمیں ملتی ہے۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو
आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। देखा। तो हम देखते हैं कि वो चीजें जो खुदा ने आसमान पर तैयार की हैं, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और उस वक्त बहुत, जिस तरह के हम पहले सीख चुके हैं कि बहुत खुशियों का समा होगा। जी जी। नया आसमान और नई जमीन होगी, और उसके साथ साथ हम इस बात को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि कौन से लोग हैं, फिर वही बात कि कौन से लोग हैं जो उस नए यरूशलेम में जाएंगे। जी पास्टर जी, आपकी बात मैं काट रही जी। हूँ, सवाल एकदम से मेरे ज़हन में आ गया कि नया आसमान और नई ज़मीन की क्या ज़रूरत है, मतलब यहाँ पर जो लिखा है। और क्योंकि थोड़ा- बाइबल में इसका जिक्र है कि ना ये आसमान पाक रहा और ना ये जमीन, क्योंकि आसमान पर लड़ाई हुई जी जी। जो हमें बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और जमीन आदम के वसीला से मालाऊन हो गई। तो इसलिए खुदा को जरूरत पड़ी जी। कि इसे पाक करे, नया आसमान बनाए और नई जमीन और नया यरूशलेम, ये सब कुछ उसने कहा कि मैं नया बना दूंगा। जी तो इसलिए खुदावंद के कलाम में हमें यहाँ पर यह बात मिली है कि नया आसमान नई जमीन होगी, और फिर और बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं नए यरूशलेम के ताल्लुक से। नया यरूशलेम, और वो आसमान से उतरेगा। तो हम जब इन चीज़ों का मुताला करते हैं तो हमारे ईमान को तकवीयत मिलती है। हमारे पीछे कोई काम करने वाला है जिसने अपना खून दिया है, जिसने अपनी जान दी है, जिसने इस ताल्लुक से कहा है कि नया आसमान और नई जमीन होगी और फिर एक फिजा नई होगी। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों के आंसुओं को पहुंच देगा। एक नई खुशी होगी। वहां पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वहां पर लाइट नहीं जाएगी, वहां पर दुनिया के ये सारे धंधे नहीं होंगे। सिर्फ ईमानदार लोग खुदा की प्रस्तुत करेंगे और उनका खुदा उनमें मसरूर होगा। आमीन। ये बाइबल की कितनी तालीम अच्छी है। और खूबसूरत और एक अच्छी उम्मीद है हमारे सामने कि हम एक ऐसी जगह पर, ऐसी जिंदगी में दाखिल होंगे जहां पर कि खुशी है। देखिए जी, यीशु मसीह उम्मीद है। लोग अभी तक इन ख्यालों में हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ लोग ख्याल करते हैं कि जी कब्र में मुर्दे को जिंदा किया जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा और हिसाब लेके फरिश्ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले मुर्दा को जिंदा करेगा, फिर हिसाब लेगा, फिर मर जाएगा वो। क्योंकि ये बाइबल तो हमें ये इस तरह की बाइबल बातें में बिल्कुल नहीं ये सिखाती। सिर्फ मुख्तलिफ रिलीजन के ख्याल आते हैं, जी लेकिन बाइबल ये बयान करती है ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, मेरी उससे बातचीत हो रही थी, तो वो ख्याल कर रहे थे। मैंने उसको बताया खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से। जी जी। तो उस शख्स ने मुझे कहा जी वहां तो आसमान पर हुरें मिलेंगी। तो मैंने कहा भाई बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह ने कहा आसमान पर तो ब्याह शादियां नहीं होंगी। बिल्कुल। वहां तो लोग जो होंगे वो खुदा की प्रस्तुत करने के लिए होंगे। जी। तो इसलिए बहुत सारे ख्यालात, मुख्तलिफ ख्यालात घूमते हैं, लेकिन सच्चाई बाइबल मुकद्दस में, मुकाशवा की किताब में हर बात ये लिखी हुई है कि वो सच्चा है और वो बरहक है, और इसी ताल्लुक से हमें बाइबल मुकद्दस में से ये तालीम मिलती है। थैंक यू वेरी मच। आमीन। बहुत खूबसूरत बातें हैं, इनको हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हाँ जी, वेलकम बैक। पास्टर जी, बहुत खूबसूरत बातें हम आपसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था पहली आयत में, मुकाशवा 21 बाब उसकी पहली आयत में हमने पढ़ा था कि नया आसमान और नई ज़मीन आसमान पर से उतरेंगे। तो उससे जब आगे मैं पढ़ रही थी तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको भी थोड़ी सी समझ नहीं आएगी कि आसमान भी नीचे आ गया है, ज़मीन भी आए नए, तो अलहदा से शहर मुकद्दस नया यरूशलेम। तो
नया यरूशलेम क्या उस ज़मीन में नहीं था, उसको अलहदा से क्यों बताया गया है? जी जी, बहुत अच्छा, बहुत डीप सवाल है ये, और इसको हम गौर से सुनेंगे तो हम इसको समझ जी, सकेंगे। मेरी पूरी तवज्जो आपके साथ तो मैं चाहता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं वो भी बड़ी तवज्जो से सुने। जी। तो हमें बेसिकल देखा जाए तो यरूशलेम की इस दुनिया में अहमियत अभी भी बहुत है। क्यों बहुत है? कि खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म वहां लिया, जी ठीक है। फिर ऐसे मकाम वहां देखते हैं जहां पर यीशु मसीह की कब्र थी, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। जी जी तो ये इस वजह से उस यरूशलेम की वैल्यू जो है इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। जी लोग, दुनिया के लोग जो हैं वो यरूशलेम को देखने के लिए जाते हैं। अभी मेरे कुछ डच दोस्त हैं, वो गए थे, उन्होंने आके मुझे बताया है कि वहां पर वो कब्र भी मौजूद है, वहां पर वो ऐसे मकाम, खोपड़ी का मकाम भी मौजूद है, और जहां पर यीशु मसीह को सलीब दिया गया, ऐसे मकाम जो तारीखी हैं जी जी और लोग उसको अभी भी देखने जाते देखने के लिए हैं। जाते इसकी हैं लोग। इस जगह की इतनी वैल्यू है इस दुनिया में रहते हुए। तो अभी हमें सिर्फ देखना है कि नया आसमान और नई जमीन और नया यरूशलेम। तो अगर बाइबल को डीपली पढ़ेंगे आपको, तो नया यरूशलेम जो है वो खुदावंद की हजूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नए आसमान में और नई जमीन में इस चीज की कमी है कि नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और फिर उसमें खुदावंद की हजूरी होगी। नया यरूशलेम बेसिकल उसका मकसद यह है कि खुदावंद की हजूरी। आमीन। और इस दुनिया में रहते हुए भी यरूशलेम में जब खुदावंद यीशु मसीह उसमें दाखिल हुआ यरूशलेम में, जी जी तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस ये तारीखी बात है कि वो दरवाजा कभी खुला ही नहीं था जिसमें यीशु दाखिल हुआ था। तो हमें ये मालूम होता है कि ये तारीखी एक जगह है, इसकी आज भी वैल्यू है। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, और फिर नए यरूशलेम की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि खुदावंद नए यरूशलेम में खुदावंद की हजूरी होगी, और इस नए आसमान में और नई जमीन में खुदावंद की हजूरी की जरूरत है। हाँ जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया कि नया यरूशलेम क्या है, यानी खुदावंद की हजूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हमारी ज़रूरत है कि कलीसियाओं में खुदावंद की हजूरी हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको किस तरह से, मतलब हम प्रस्तिश के वसीला से, या किस तरह से आप मतलब उसका बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह कलीसियाओं में किस तरह से उनकी हजूरी हो। देखो जी, बाइबल हमें ये सिखाती है कि हजूरी उस वक्त होती है किसी चर्च में लोग प्रस्तुत करते हैं, और मैंने अक्सर ये कहता हूं कि लोग मस्जिद में, लोग मंदिर में, लोग चर्चों में इसलिए जाते हैं कि खुदा को ढूंढें। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की अंजील में कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करें। तो इसका मतलब है जब हम रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं तो उसकी हजूरी होती है। आमीन। तो इसी तरह बाइबल में लिखा है कि नए आसमान में और नई जमीन जब होगी तो वहां पर लोग क्या करेंगे? यहां सिर्फ उसकी हजूरी होगी और उसकी प्रस्तुत की जाएगी। लोग उसे सजदा करेंगे, उससे धन्यवाद करेंगे, हालेलुया के नारे लगाएंगे वहां पर। क्यों? कि वहां पर खुदा की हजूरी होगी। नया यरूशलेम खुदावंद की हजूरी है, और वो हम जब यहां पर प्रस्तुत करते हैं तो खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान होती है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो फिर नया यरूशलेम होगा, और वहां पर खुदा की हजूरी और खुदा के लोग और खुदावंद खुद वहां मौजूद होगा। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बातें हैं मास्टर जी। इसी के साथ हम आगे जब देखते हैं 5वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। कलाम मुकद्दस तो सारा ही सच्चा है, लेकिन मुकाशफा में हम देखते हैं हर बात को बड़ा वो बार बार फरिश्ता या जो भी मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना आरिफ से जब मुखातिब होते तो उसको बार बार यही कहते हैं कि लिख ले, ये बातें सच और बरहक हैं। तो इस चीज़ पर क्यों इतना गौर दिया गया है? देखें, मुकाशफा की किताब जब लोग पढ़ते हैं
देखते हैं इसको, तो ये किताब यूहन्ना आरफ पर नाजिल हुई। ये रोया वो देखता था, और जैसे जैसे यूं यूं वो देखता था और उसके ताल्लुक से पूछता भी था, बात भी करता था उससे। और ये बात हमें देखते हैं कि बार बार ये कहा गया कि ये बातें सच हैं, बरहक हैं, क्योंकि इसमें उसने जो कुछ भी पाया है यूहन्ना आरफ ने डायरेक्ट पाया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो जिस पर शक किया जाए कि ये इस तरह से नहीं होगा। तो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से ये बातें लिखी गई हैं, और मुकाशफा की किताब एक खास किताब है, ये रोया से नाज़िल हुई है, और वो यूहन्ना आरफ उसको देखता रहा। ये पतमस के जजीरा में ये सब कुछ उसने देखा और उसने इसको कलमबंद किया है। तो हमें ये बातें मालूम होती हैं कि ये बातें बरहक और सच हैं। वो कहता है लिख ले, क्योंकि इसमें से ना तो कुछ घटाया जाएगा और ना कोई बढ़ाया जाएगा। जो कोई इसे घटाएगा या इसे बढ़ाएगा उसकी सजा बहुत बहुत बड़ी सजा है उसकी। तो इसलिए ये सच्चाई जो है ये हम तक पहुंचाई गई है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, और फिर यूहन्ना आरफ के वसीला से। खुदावंद खुदा ने उसे वो रोया उस जगह पर पतमस के जजीरा में दिखाई, और वो उसने कलम बंद की और वो हम तक पहुंची। आमीन। शुक्र करते हैं उस कलाम के वसीला से खुदावंद के बंदा के लिए कि जिसने ये सारी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अजीज़ों, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी पास्टर जी। जैसा आपने अभी बताया था कि इस किताब को, मुकाशफा की जो किताब है, ये बहुत ही अहम किताब है, और इसका जो मुसन्निफ है, लिखने वाला है, और जिसको ये सारी बातें खुदा ने खुद डायरेक्ट कही हैं, वो भी वही है जो कि किताब को लिखने वाला, यानी यूहन्ना आरफ। तो इस किताब के बारे में और थोड़ा सा हमें और वजाहत से बताएं। इस किताब के ताल्लुक से जब पढ़ते हैं यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, तो हम ये देखते हैं कि उस वक़्त यूहन्ना आरफ को ये सजा दी गई कि वो पतमस के जजीरा में रहे, पर खुदा ने पतमस के जजीरा में उसके साथ हम कलाम हुआ। ये सच्चाई है। हाँ जी। और फिर हर बात के बाद आपको बहुत ऐसे मुकाम नजर आएंगे, ये बातें लिख ले, ये सच और बरहक है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि किसी तरह से कोई बात ऐसी हो जिस पे शक हो, क्योंकि मुकाशफा की किताब में कोई शख्स शक नहीं करता। वो कहता है जो कुछ ये लिखा गया है, जो यूहन्ना आरफ ने उस मकाम पर लिखा है, वो बातें रोया में खुदावंद यीशु मसीह को देखता रहा है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उससे हम कलाम होता रहा है, और ये सारी चीजें जो है उस वक़्त से महफूज की गई हैं, इसलिए कि ये हम लोगों तक पहुंचे और लोग इस कलाम को पढ़ें। और क्योंकि बाइबल में लिखा है इसकी पहले बाब में 3री आयत में कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे तब भी मुबारक है, सुनेंगे तब भी मुबारक है, अमल करेंगे तब भी मुबारक है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। यहां पर खुलेआम उसने बताया कौन लोग मेरे साथ जाएंगे, कौन लोग नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम तैयारी करें। इसलिए तैयारी करें कि हमें उसकी बादशाह में जाना है। तो जब बादशाह में जाने के लिए तैयारी करेंगे तो फिर हमें ऐसे काम, जिस तरह से हमने पहले भी सीखा है, ऐसे काम करें जिसमें खुदावंद की बदनामी ना हो। खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलें, यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को बसर करें, और उस पोशाक को हासिल करें। वो पोशाक बड़ी कीमती पोशाक है, और वो तैयारी बड़ी खास चीज है। जब हम उसको तैयार करते हैं, उस पर तैयारी करते हैं,
तो आम लोग उस पर तैयारी नहीं कर सकते। खुदावंद का फजल हो, फजल है ये किताब को पढ़ना, सुनना और अमल करना इस पर, ये ऐसे लोग मुबारक हैं। और मैं और आप और सुनने वाले सब मुबारक हैं, क्योंकि इस कलाम को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम था जो आपने हमारे साथ शेयर किया, एक नया आसमान, एक नई ज़मीन के बारे में और एक नए यरूशलेम के बारे में। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी इस खूबसूरत कलाम के लिए। थैंक यू जी। और खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी टीम को खुदावंद बरकत दे और इसी तरह से खुदावंद की बादशाह के लिए काम करते रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अजीज़ों, बहुत ही खूबसूरत कलाम था आज का कि एक नया आसमान और एक नई ज़मीन होगी। क्या हम तैयार हैं उस नए आसमान और नई ज़मीन के लिए? क्योंकि जिस तरह से नया आसमान और नई ज़मीन होगी, इसी तरह हमें भी नया बनने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें नए लोग ही जा सकते हैं। पुरानी ज़िंदगी वाले में रहते हुए हम उस नए आसमान और नई ज़मीन के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते। इसलिए अभी तक अगर आपने यीशु मसीह के खून से अपने जामे नहीं धोए तो उनको धोकर नई ज़िंदगी हासिल करें, ताकि उसके साथ हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप हमारे साथ थे, इस प्रोग्राम को देखा। अपने फीडबैक्स भेजना हमें ना भूलें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइंदा के लिए इजाज़त चाहूँगी। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बहुत बरकत दे और अपने नाम, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और ये फजल बख्शे कि अपनी ज़िंदगियों को उसके कलाम के मुताबिक चला सकें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।